Hello students, today we will see again our topic Bills of Exchange, chapter number 7. Into this topic we discuss practical problems. How to pass entry into this topic. But before we see again the concept Bills of Exchange. Into this Bills of Exchange we discuss some important rules of accountancy. These are golden rules of accountancy. Accountancy के golden rules देखिए. इस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको जनरल एंट्री जो आपको पास करना है. Nearby 8 to 10 general entry asked in our examination. How to pass general entry when some transactions is given there. Into this topic, the three parties is there. 3% is most important: drawer, drawee, and इसके बारे में लास्ट जो मैंने वीडियो बनाए थे थ्योरी के वीडियो, थ्योरेटिकल पार्ट्स में आपने देखे, थ्योरी वीडियो में देखे कि ड्रावर क्या होता है, ड्रावी क्या होता है और पी क्या होता है. व्हेन यू स्टार्ट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, व्हेन यू पास द जनरल एंट्रीज, ड्रावर एंड ड्रावी एंड पी आर प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो ड्रावर जो होता है और ड्रावी, इसका मीनिंग देखेंगे पहले थोड़ा शॉर्ट में और बाद में डिटेल्स देखेंगे. रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की जो रूल्स है, गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, उसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करना है. 11th कॉमर्स में जो आपका हुआ है बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो आपको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे. व्हाट इज पर्सनल अकाउंट्स, व्हाट इज रियल अकाउंटिंग, व्हाट डिड नॉमिनल अकाउंट रूल्स से. तो इनटू दिस टॉपिक बिफोर वी आर सी ड्रावर, ड्रावी एंड बिल. हु ड्रॉज द बिल? Drawer draws the bill. It is called drawer. He is a drawer. For example, we see three diagrams. We calculate now. This is our shop. ये आपका शॉप है. ये शॉप ओनर. This is seller. ये सेलर है. इसे another one creditors कहा जाता है. He is a creditors. He is a seller. He is a creditors. He is a drawer. ये आपका ड्रॉवर है. He draws the bill. He draws the bill. ये क्या करता है? ड्रॉवर. He is draws the bill. ये बिल निकालता है. उसे कहते हैं ड्रॉवर इज आदेशिकी इनको हिंदी में. आदेशिकी, he give the order to that person, those who have purchased. He is a bills receiver. He is a bills receiver. In short, BR. He is a drawer. He is a bills receiver. Drawer prepare a bill and sign the bill. Drawer, he prepare a bill. ये बिल प्रिपेयर करता है, बनाता है. He prepare a bill. He prepares bill and sign. He prepares bill and sign. Sign the bill. Sign the bill. मैं sign बोल गया. Sign the bill. He prepare bill and sign the bill. According to drawers, records all transactions. According to drawers, record all transactions. Drawers. According to drawers, record. Here for drawer record all transactions.
Driver record all transactions. So driver has to receive the amount specific on the bill. Driver has received the amount of specific bill. ड्रावर जो होता है सेलर, उसे ड्रावर कहा जाता है. ड्रावर प्रिपेयर द बिल. ड्रावर हैज टू रिसीव ड्राइवर has to receive the amount of specified जो अमाउंट होता है, specified amount of specified on the bill. He is a creditor, he is a bill driver, he is a seller, shop owner. उसे जो होता है, he is a seller, he is a bill receiver. Bill receiver means he is a bill receiver. आपने अभी लिखा, आपने मेंशन किया इस सेंटेंस का कि he is a bill receiver. Driver is a PR. He is a BR also. BR means क्या? BR for bills receivable. Bill receivable means accordingly driver records all transactions. Accordingly driver record all transactions. Driver record all types of transactions relating to, इससे संबंधित रहता हो, relating to bills under the title, this title is called bill receiver. Under the title or name is called bill receiver. Is called bills receiver. इसे बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है. इज ए BR because bill receivable means bill receivable recording the driver records. According to the driver's record, all transactions relating to bills under the title or name is called bill receivable. Under the title, under the name, all transaction rendered under the title, it is called bill receivable. इसे बिल रिसीवेबल कहा जाता है. ही इज अ सेलर, ही ड्रॉज द बिल, ही प्रिपेयर द बिल. शॉप ओनर इज प्रिपेयर द बिल. तो बिल प्रिपेयर करता है, एक बिल बनाता है. इट इज कॉल्ड बिल. ही प्रिपेयर द बिल. इट इज कॉल्ड ड्राफ्ट. किसके लिए बनाता है प्रिपेयर द बिल? ऑन ड्राइविंग. ये ड्राइविंग के लिए प्रिपेयर करता है. ही इज अ ड्राइवर. ये आपका ड्रॉवी है. ही इज ए बायर. ये क्या है? बायर है आपका. ही इज ए बायर. ये आपका बायर. ही इज ए, अगेन ड्रॉवी. ही इज ए बायर. ही इज ए, ड्रावी इज ए क्रेडिटर्स. ड्राइवर इज क्रेडिटर्स. ड्रावी इज डेब्टर्स. ये आपका डेब्टर्स. ही इज ए बिल्स पेपर. ये बिल्स पेपर होता है. ही इज ए बिल्स पेपर. बिल्स पेपर मीन्स द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल ऑन ड्यू डेट. बिल्स पेपर मीन्स अमाउंट ऑफ बिल पेबल, जो आपको पे करना पड़ता है ड्यू डेट को. पेबल ऑन ड्यू डेट बाय ड्रावी. पेबल ऑन ड्यू डेट बाय ड्रावी. पेबल ऑन ड्यू डेट बाय ड्रावी. एंड हेंस फॉर हिम इट इज ए बिल्स पेबल. इसलिए उसे कहा जाता है एंड हेंस
For him, it is a paper. It is a bills paper. Hence, for him, it is a bills paper. It is a ड्राइविंग. इसे ड्राइविंग कहा जाता है. ये ड्राइविंग है. और इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होता है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इन दोनों के बीच जो टाइम होता है, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है. उधारी का व्यवहार होता है इसके अंदर. क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी सी इनटू दिस टू पर्सन. ये फर्स्ट पर्सन इज आवर ड्रॉविंग. इसे एक नंबर देंगे, ड्रॉवर. ये ड्रॉविंग. थर्ड जो होता है आपका, ही इज ए पेई. पेई इज ऑल्सो ड्रावर. पेई ये ड्रावर ही होता है. थर्ड है आपका पेई. ये आपका थर्ड पर्सन पेई. पेई जो होता है, द थ्री पार्टीज इन और बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज जो है, ड्रावर, ड्राइव एंड पेई. ये आदेश निकलता है, उसे आदेशक कहा जाता है. ये कौन होता है? आदेशक. और जो एक्सेप्ट करता है आदेश, उसे कहते हैं आदेशी. जो आदेश एक्सेप्ट करता है, पी इज द थर्ड पर्सन. ही इज ऑल्सो ड्राइवर. पी को ड्राइवर कहा जाता है. पी इज ए ड्राइवर. ड्राइवर क्यों जाता है? द पर्सन. पी क्या होता है? द पर्सन. ये जो पर्सन है आपका, पी पर्सन जो आपका होता है, थर्ड पर्सन. अ पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट. नेम इन द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज आवर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट. अ पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट. नेम इन द इंस्ट्रूमेंट. नेम इन द इंस्ट्रूमेंट. नेम इन द इंस्ट्रूमेंट. रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इसका नाम होता है. नेम इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम. Name in the instrument to whom the amount of the bill, the amount of the bill, amount of the bill, whom the amount of the bill, whom the amount of the bill is to be paid, is to be paid is called P. Is to be paid is called P. उसे P कहते हैं. A person name in the instrument to whom the amount of the bill is paid is called P. Generally drawer is a P. Generally drawer is P. Drawer is P. Drawer क्या होता है आपका? P होता है. It was be the third party, the third persons. इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है. ये तीसरा व्यक्ति है. But this P is also called drawer. So to whom the amount of the bill is paid is called P. Generally drawer is P. drawer को ही P कहा जाता है इसके अंदर. It is also called third person. ये थर्ड पर्सन भी उसे कहा जाता है. Like a creditors. थर्ड पर्सन इज our creditors. P यू क्या कहा जाता है? creditors. इसलिए ड्रावर इज सेलर, ड्रावर इज क्रेडिटर्स, ड्रावर इज बिल रिसीवर. ये तीन जो आपका शब्द है, ड्रावर इज बिल्स रिसीवर, ड्रावर इज सीआरएस क्रेडिटर्स, ड्रावर इज सेलर. इसलिए ड्रावर को ये तीन नाम से आप जानते हैं. इट इज अ सेलर, इट इज अ क्रेडिटर्स, इट इज अ बिल्स रिसीवर. मगर पे इज ऑल्सो ड्रावर. ये भी आपका ड्रावर होता है. इट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. ये क्रेडिटर्स आपका होता है. सो पे मीन्स अ पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट. जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, द पीस ऑफ पेपर आप उसे कहते हैं. कागज का जो टुकड़ा होता है, जिससे लीगल प्रूफ, लीगल इंपॉर्टेंस में होता है, लॉफुल रहता है, लीगली रहता हो. द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द थर्ड पर्सन इज पेइंग. अ पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट. रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, कागज होता है, उस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टू हुम द अमाउंट ऑफ द बिल इज टू पेड is called pay. Pay is also creditor. So generally drawer is called as pay. So generally drawer is pay. Drawer generally pay होता है. So drawer को कहा जाता है creditors. Drawer को कहा जाता है bill receiver. It is a seller. इस sold goods to buyer. ये क्या करता है? Sold goods
टू बाय, ये बायर को, ये जो आदेशी थी जो आपका आदेशी, इट इज अ कस्टमर, इट इज अ बायर, जो खरीदार उसे कहते हैं, ये आपका वेंडर है, ये वेंडर है, वेंडर है विक्रेता जो वस्तु बेचता है, ये आपका विक्रेता है, इट इज अ सेलर, इट इज अ बायर, ये खरीदी करता है, खरीदार उसे कहते हैं आप, इट इज अ परचेसर, सो इट इज कॉल्ड बिल्स पेबल, ये आपका बिल्स पेबल, ही पे द बिल, इट इज अ बिल्स रिसीवेबल, ही रिसीव द बिल, he acceptance that return instrument, it is called ड्राइवर, ये आपका ड्राइविंग आपका है। सो बिल्स पेबल इज अमाउंट ऑफ बिल पेबल ऑन ड्यू डेट, जो आपकी ड्यू डेट रहती, पेड ऑन ड्यू डेट बाय ड्राइविंग, ड्राइविंग को ड्यू डेट को पेड करता है, ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड ड्राइविंग, इट इज कॉल्ड ऑल्सो अनदर वन, इट इज अवर डेटर्स, ये आपका डेटर्स है। ये हो गया आपके थ्री पार्ट जो आपने देखे, ड्रावर, ड्रावी एंड पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसका डीप कंसेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स अभी अपने डिस्कस किए। इसके बाद में पॉइंट्स देखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपने 11th में स्टडी की, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स कितने हैं आपको मालूम है, 3 रूल्स, नेम ऑफ दिन, कितने रूल्स है, 3 रूल्स, नेम ऑफ दिन, राइट, रियल अकाउंट, बराबर बोल रहे रियल अकाउंट, सेकंड नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, दैट इज द 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एक पहला, ये दूसरा, तीसरा। व्हाट इज पर्सनल रियल अकाउंट से, रियल अकाउंट का रूल क्या है, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, फॉलो द रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये होगा आपका रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल करेक्ट गेन्स एंड इनकम, यहां बराबर बोल रहे हैं, गेन्स एंड इनकम। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट से, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट एंड दिस, एंड यू विल ऑब्जर्व दिस 3 रूल्स, ये आपके जो रूल्स है इसको आप ऑब्जर्व करते हैं चार्ट के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। अगर रूल्स लिखने पे ये आपके रूल्स है डेबिट और ये रूल्स है आपका क्रेडिट का, इन शॉर्ट में आप लिखते हैं। ये आपका है रियल अकाउंट, ये आपका है नॉमिनल अकाउंट, और थर्ड आपको बनाते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट का कॉलम आपका चल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट
in write down to short key DR and credit write down to CR. DR means debit, CR means क्रेडिट. इन शॉर्ट में आप लिखते हैं DR CR, डेबिट में और क्रेडिट. डेबिट में DR आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड इट इज डेबिट, राइट हैंड साइड जो होती है आपकी क्रेडिट होती है. यानी इस बोर्ड की ये डेबिट साइड है. ये बोर्ड के दो पार्ट आपने यहाँ पे किए. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज अ डेबिट साइड. ये क्या आपकी डेबिट साइड, इसे कहते हैं DR. और राइट हैंड साइड क्या होगी आपकी क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड उसे कहते हैं CR. CR और DR ये कस्टमर वर्ड्स, ये जो लैटिन वर्ड है DR CR, DDR एंड DBR. इसमें DR और CR आपको लिखा जाता है. राइट में आप DR लिखते हैं, क्रेडिट की जगह आप CR मेंशन करें. CR फॉर क्रेडिट, DR फॉर डेबिट. ये कस्टमर वर्ड्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन आवर अकाउंट रिसीवेबल. ये हमेशा अकाउंट में आपको ये कस्टमर वर्ड आप यूज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट. ये कस्टमर वर्ड्स आप डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में हमेशा यूज करते हैं. डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट्स के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. पर्सनल अकाउंट का नियम डेबिट द रिसीवर. रियल अकाउंट का क्रेडिट का नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल से क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. एंड पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट द गिवर. एंड क्रेडिट साइड में व्हाट गोज आउट, ऑल गेन्स एंड इनकम एंड गिवर ऑफ आवर बेनिफिट्स ऑफ आवर बिजनेस. ये पूरे क्रेडिट में आते हैं CR साइड में. ये क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं. और ऑल डेबिट में क्या लिखते हैं, जो आ रहा है, कैश आ रही है, गुड्स आ रहा है. डेबिट फॉर्स कमीशन, आपके बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, वो राइट डाउन टू डेबिट साइड. एक्सपेंसेस आप ऑल एक्सपेंसेस आप डेबिट में लिखते हैं. और ऑल रिसीव, जो आपको बेनिफिट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ऑल रिसीव राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट. दैट इज पर्सनल अकाउंट. डेबिट साइड में ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल रिसीव्स. क्रेडिट साइड में व्हाट गोज आउट, ऑल इनकम्स एंड ऑल गिवर. जो आपके पास आ रहा है गुड्स, कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट्स कम्स इनटू आवर बिजनेस, इट इज राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स है, इट्स एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, दिस एक्सपेंसेस अकाउंट्स. डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स. पर्सनल अकाउंट के डेबिट में ऑल रिसीवर, क्रेडिट में ऑल गिवर. जो दे रहे हैं आप कैश देते सकते हैं, गुड्स सेल कर सकते हैं. ऑल rules which we follow when you write down our accountancy records. When you see the accountancy transactions, we follow these 3 rules. जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप रीड करते हैं तो आपको जिस ट्रांजेक्शन दिया जाता है यू शुड फॉलो दैट रूल्स. ये रूल्स आपको फॉलो करना पड़ते हैं डेबिट और क्रेडिट. ये देखना है. इसमें आपको जनरल एंट्रीज आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर. ये 3 रूल्स है, वो 3 रूल्स आपको 11th हो चुके हैं. एक शॉर्ट में बताने की मैंने आपको कोशिश की. तो थोड़ा 11th का बेस भी आपको मालूम होना चाहिए. 11th का बेस आपको है. अच्छा, तो आपको ये ड्रावर और ड्राइव की एंट्रीज आपको करना है. यहाँ पे आपको स्पेसियम जो आपको उसका डेबिट और क्रेडिट ये यूज करना है आपको. यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ रीड द ट्रांजेक्शंस केयरफुली एंड पास एंट्री इनटू दैट जनरल. सो एक्सेप्टेंस जो होता है इसके अंदर, इसके बाद में इंपोर्टेंस आपको देखना है. व्हाट इज ड्राफ्ट एंड एक्सेप्टेंस, कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. ये एक्सेप्टेंस है स्वीकृति. ये स्वीकृति क्या होती है, एक्सेप्टेंस एक वर्ड देखना है एंड ड्राफ्ट. ये ड्राफ्ट क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है. एक्सेप्टेंस पहले देखेंगे. एक्सेप्टेंस है बिल को आपने स्वीकृति देना ड्राइव द्वारा. एक्सेप्टेंस इज द बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स, एक्सेप्टेंस मीन्स इसका भी मीनिंग होता है. एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स, इसका मीनिंग आप लिखेंगे. Acceptance of bill of exchange means signing the bill of exchange, signing the bill of exchange, signing the bill of exchange, signing the bill of exchange by drawing. आपने देखा ड्राइंग और ड्राइंग का मीनिंग. Signing the bill of exchange by drawing to give his assent, जो उसको भेजा हुआ है, to give his assent to pay the assent to pay the amount of bill, to pay the amount of bill
टू पे द अमाउंट ऑफ बिल अनलेस, नहीं तो क्या होता है, अनलेस द बिल इज एक्सेप्टेड, द बिल इज एक्सेप्टेड, द बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉइंग, accepted by the drawing, accepted by the drawing, he is not liable to pay, he is not liable to pay an amount of bill, liable to pay an amount of bill. It is called accept, it is called meaning of acceptance, amount of the bill, it is called acceptance. Acceptance means the bill of exchange means the acceptance of signing the bill of exchange, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट आप साइन करते हैं, रिसीव करते हैं, साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज बाय ड्राइंग, ड्राइविंग द्वारा, मैंने आपको बताया था पहले, ड्राइविंग कौन होता है, ये शॉप है आपका, ये आपका शॉप है, ये सेलर है, ये ड्राइवर है, ये गुड्स सेलिंग द गुड्स, ये बिल सिस्टम है, और ड्राइविंग जो होता है ये जो बायर को क्या कहते हैं आप, ड्राइविंग, he is a bills payable person. So signing of the bill of exchange, signing by drawing, ये क्या करता है, साइन करता है, he was sign now, signing by drawing to give his assent, जो उसको भेजा गया है ड्राइंग, इसको जो बिल्स भेजा जाता है, उसका ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको भेजा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज साइन, हु वाज साइन, बायर वाज साइन द बिल, buyer is sign the bill, is assent the pay the amount of bill, sign करके देता है, भेज देता है, send the bill to the drawing, unless the bill is accepted by drawing, he is not liable to pay an amount of bill. That is called acceptance, उसे acceptance कहा जाता है. उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है आपकी ड्राफ्ट. ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट मीन्स trade bill is bill of exchange, draft means bill of exchange before, bill of exchange before, bill of exchange before its acceptance, before its acceptance is called a draft, is called a draft, उसे ड्राफ्ट कहा जाता है. बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर, उसके पहले, इट्स एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ड्राफ्ट, उसे कहा जाता है ड्राफ्ट, उसकी स्वीकृति उस ड्राफ्ट के पहले मिलती है, इट इज कॉल्ड ड्राफ्ट. बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. इसके बाद में जो इंपॉर्टेंस कंसेप्ट आप किसके जो स्टार्ट करने बिल ऑफ एक्सचेंज में, ट्रेड बिल क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड बिल, व्यापार पत्र जो होता है, व्यापार विपत्र. ट्रेड बिल इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो है trade bill is a bill of exchange, trade bill is a bill of exchange, bills of exchange. Trade bill is a bill of exchange which is drawn is निकलना, which is drawn by creditors, drawn by creditors यानी सेलर द्वारा, drawn by creditors on his debtors, on his debtors with valuable, जो मूल्य उसका दिया हुआ है, with valuable considerations, called trade bill, उसे ट्रेड बिल कहा जाता है. ट्रेड बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स ऑन हिज डेटर्स, ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स. ये आपका शॉप है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ शॉप, इस शॉप का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं. ये शॉप आपका है, इस शॉप में जो सेलर आपका है, ही ड्रॉज द बिल, ये बिल क्या करता है, ड्रॉ करता है.
ये आपका शॉप है और ये आपका यू, ये जो बायर, ये ड्रॉवी आपका, ये ड्रॉवर, ये सेलर है, सेलर इज आल्सो कॉल्ड ड्रॉवर, टू ड्रॉ द बिल। ये क्या करता है, द ट्रेड बिल इज द बिल ऑफ एक्सचेंज विच ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स उसे कहा जाता है, अनदर वर्ड्स ये इट इज ए क्रेडिटर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड पे। ये जो क्रेडिटर्स होता है वो क्रेडिटर्स क्या करता है, ऑन हिज डेटर्स, बायर इज डेटर्स, ये आपका डेटर्स है, ये आपका क्या है, डीआरएस उसे कहते हैं, डीआरएस फॉर डेबिटर्स, ये आपका डेबिटर्स है, विथ वैल्यूएबल कंसिडरेशन कॉल्ड ट्रेड बिल, उसे कहा जाता है ट्रेड बिल। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है बिल द्वारा, इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, ये है आपका ट्रेड बिल, इट इज कॉल्ड ट्रेड बिल, इट्स अ ट्रेड बिल। ट्रेड बिल is a bill of exchange which is drawn by creditors on his debtors with valuable consideration called trade bill, उसे valuable consideration को कहा जाता है trade bill। That is the meaning of acceptance, that is the meaning of draft the bill, that is the meaning of trade bill। Into this bill exchange we discuss the trade bill। ट्रेड बिल के बारे में आपको इसमें जनरल एंट्री पास करना है। दिस 3% इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रावर, ड्रावी एंड पे। सो इन शॉर्ट ड्रावर क्या है, ध्यान में रखो, अभी आपको प्रैक्टिकल जनरल एंट्री स्टार्ट करना है। ड्रावर इज क्रेडिटर्स, ड्रावर इज बिल्स रिसीवेबल, ड्रावर इज इन शॉर्ट फॉर्म BR, बिल रिसीवेबल। ड्रावर इज सेलर, ये क्रेडिटर्स है, इसे पे कहा जाता है, आल्सो पे, मैंने इसका मीनिंग बताया उसको। ड्रावर इज क्रेडिटर्स, ड्रावर इज क्रेडिटर्स, ड्रावर इज बिल्स रिसीवेबल, ड्रावर इज सेलर, ड्रावर इज ड्रॉ द बिल, ही प्रिपेयर द बिल, ही प्रिपेयर द बिल, ये बिल बनाता है, प्रिपेयर द बिल, प्रिपेयर द बिल and records or transactions, records or transactions, record or transaction, इसे कहते हैं ड्रावर, रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शंस। ये आपका शॉप है, आपका जो शॉप है, दुकान, ये आपका सेलर, और दिस इज यू बायर। तो बायर क्या है, बायर इज ही इज मीन्स बायर, ही इज अ डेप्टर्स, ये आपका डेप्टर्स है, ही इज ए बिल्स पेबल, ये रिसीवेबल है, तो ये क्या है, पेबल, ही इज ए बिल्स पेबल, ही इज ए बायर, ये बायर है, उसे खरीदार कहते हैं, ही इज ए परचेसर, he is a purchaser and he acceptance the bill, ये बिल को क्या करता है, एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल, ड्रॉवी क्या करता है, ये ड्रॉवी आपका, ठीक है, ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल, एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड टू ड्रॉवर, एक्सेप्ट द बिल सेंड टू ड्रावर, ये बिल इसको सेंड करता है, सेम बिल एंड एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड टू द ड्रावर। इसमें डिफरेंस है बिल सेक्शन में, ड्रावर एंड ड्रावी। ड्रावर प्रिपेयर द बिल सेंड टू द ड्रावी, ड्रावी एक्सेप्ट द बिल सेंड टू द ड्रावर। समझिए बिल है, एक एग्जांपल आप लेते हैं इसका अंदर, ड्रावर ड्रॉ द बिल एंड हाउ टू सेंड टू द ड्रावी। ड्राइव किस तरह सेंड करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने प्रिपेयर किया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने प्रिपेयर किया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, ही प्रिपेयर द बिल, ये बिल प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर द बिल बाय सेलर, सेलर ने बिल प्रिपेयर किया, सेलर प्रिपेयर द बिल सेंड टू द दैट पर्सन, सेंड टू द ड्राइवर, ये ड्राइवर को सेंड करता है,
बिल ऑफ एक्सचेंज, सेलर प्रिपेयर द बिल, बिल प्रिपेयर करता है शॉप या सेलर, ये सेलर है, ये प्रिपेयर द बिल। सपोज ये बिल का तो आपका बिल है, यू आर सेलर, आप सेलर है और आप कस्टमर को भेज रहे हैं, यानी बायर को भेज रहे हैं। प्रिपेयर द बिल, सेंड टू द बायर, प्रिपेयर द बिल, सेंड टू द बायर, सेंड टू द ड्राइवी, ड्राइवी एक्सेप्ट द बिल, ड्राइवी ये बिल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ही गिव द एक्सेप्टेंस टू दैट पर्सन, ये क्या करता है, इसको एक्सेप्टेंस दे देता है। इट इज अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा, इज अ लॉफुल डॉक्यूमेंट्स, इट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर रिटन इंस्ट्रूमेंट है। सपोज एक एग्जाम्पल के मैं बता रहा हूं, लिखता हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने लिख के दिया, इसके ऊपर लिखे 10,000 रुपीज ट्रांजेक्शन, सपोज आपका ये 10,000 रुपीज आपने इसको सेंड कर दिया, ही और परचेसर। इसमें क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन सबका होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजेक्शन, मोस्टली क्रेडिट, उधारी के लिए व्यवहार होते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इनटू दिस, रिकॉर्डिंग बाय ड्रावर, ड्रावर द्वारा लिखा जाता है। सेंड टू द बायर, सेंड टू द डेटर्स, दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज करेंसी जस्ट लाइक, ये करेंसी के सरी का ही व्यवहार करता है, ट्रांजेक्शन होता है। जैसे बियरर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, उसी टाइप में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक पीस ऑफ पेपर बोलते हैं उसे, कागज का टुकड़ा जो होता है, ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मेक बाय सेलर, ये सेलर मेक बाय ड्रावर, ड्रावर उसको प्रिपेयर करता है, सेंड टू द ड्रावी। ये कंसेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। इसलिए आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी की जो है वो आपको फॉलो करना है, डेबिट और क्रेडिट के। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है, टू और बाय क्या है, उसका मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जनरल यूनिट। तो नाउ सी केयरफुली, केयरफुली बिल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको बता रहा हूं समझ में आने के लिए। इट इज अ ट्रेडर्स, इट इज अ सेलर, ड्रावर, ड्राइविंग, पे इज ऑल्सो ड्रावर, पे आपका क्या होता है, ड्रावर होता है।